ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের দুদিনের সফর। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করতে দুদিনের সফরে ব্যারাকপুর এসেছেন। পাট শিল্প এবং পাট চাষী ও শ্রমিকদের উন্নতির জন্য তিনি সরকারের নানান উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক ভূমিকার কথা জানিয়ে মন্ত্রী সিং বলেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করছে, রাজ্য সরকার যথেষ্ট সহায়তা দিচ্ছে না। মন্ত্রী সিংহের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ এবং ভাটপাড়া বিধায়ক পবন সিং। একইভাবে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ পাট শিল্প এবং পাট চাষী ও শ্রমিকদের প্রতি রাজ্য সরকারের অবহেলার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার যদি এই শিল্পের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিত তবে আরও উন্নতি হতে পারত। প্রসঙ্গত, পাট শিল্পের উন্নতি এবং পাট চাষীদের পাশে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তবে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখানে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা ডিজিটাল টিভি। देखो भाई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने खड़ा कर रखा। यहाँ क्राइजेफ जैसी इंस्टीट्यूशन है जो ब्रास्ट फाइबर, जो प्लांट से फाइबर निकलता, जूट भी है, फ्लैक्स भी है और भी रेमी है, कई ऐसे फाइबर। कभी राज्य सरकार आकर के इस पे काम नहीं किया और मेरा उद्देश्य है फार्मर को इनकम बढ़े और जूट की इनकम बढ़े, तभी लेबर का इनकम बढ़ेगा। अब हम एक क्रॉप साइकिल क्राइजेफ ने डायरेक्टर ने बनाया है। उसके डायरेक्टर गौरांकर कर जो हैं कि हम फ्लैक्स लगाते हैं, फ्लैक्स के बाद हार्वेस्ट किया, उससे केवल 3 लाख रुपए हेक्टर आएगा। उसके बाद पैडी लगाएंगे, जूट लगाएंगे, जूट के बाद पैडी लगेगा। ये साइकिल से हम किसानों को 1.5 लाख रुपए एकड़ दे पाएंगे। और जब 1.5 लाख रुपए किसान को आएगा तो इंडस्ट्री स्वतः डाइवर्सिफिकेशन करेगा। अभी जूट में 3 पाउंड के सूते आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा लक्ष्य है कि भारत सरकार का टेक्सटाइल मिनिस्टर के कारण मुझे जूट मिल को भी देखना है, जूट के लेबर को भी देखना है, फार्मर। एक जूट मिल बंद हो जा रहा है, आप ही के पॉलिसी के कारण बंगाल का 56 जूट मिल जो है बहुत अभी खतरे में है, बहुत मिल बंद भी हो चुका है, इसलिए लेबर का आप तो ये पर्सन पहले भी कर चुके। ममता बनर्जी झूठ का ठेका ली है, झूठ बोलने का। मालूम है जूट की प्राइस अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाया। अब 14,000 करोड़ का जूट बैग खरीदा जाएगा लगभग। हाँ, हमने ये जरूर कहा है, जो जूट मिल मजदूरों को EPF नंबर देता हो, जो रेगुलेशन को मानता हो, उसी को बैग का ऑर्डर मिले। জুট শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে জুট চাষিদেরও ভবিষ্যৎ যুক্ত। আমাদের গঙ্গার দুই দিকে মালদা অবধি জুট চাষ ব্যাপক হয়, নর্থ বেঙ্গলেও হয়। সে জুট এবং এখানকার ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশ থেকেও জুট আসতো। বাংলাদেশ এখন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেছে, তাদের জুটের জন্য বীজ এখান থেকে যাচ্ছে, চাষ করছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি শিখ হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানেও এখন কনস্ট্রাকশন বিজনেস চলছে। তো রাজ্য সরকার যেমন চা শিল্পকে ডুবিয়েছে, সেরকম জুট শিল্পকে ডুবিয়েছে। কেন্দ্র সরকার পলিসি ঠিক করেছে, তারা সহযোগিতা করছে। এখন শিল্পটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতা, সাবসিডি নিতেই সবাই ব্যস্ত, ওইটা নিয়ে কথা হয়। কিন্তু জুট শিল্পকে জাগিয়ে তোলা, জুট চাষিদেরকে জাগিয়ে তোলা, এখানে ক্রাইজারের মতো যে ইনস্টিটিউট, তারা রিসার্চ করে নতুন নতুন জুটের বীজ তৈরি করছেন আর উচ্চ ফলনশীল, এবং জুট তাড়াতাড়ি কম সময়ের মধ্যে কী করে পচানো যায় কেমিক্যালস বা এনজাইম দিয়ে, তারও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু উৎপাদনের পরে বিক্রি করার জায়গা নেই। বিক্রি হলে যদি কারখানায় উৎপাদন হয়, তার বিক্রির জায়গা নেই, ফলে ইন্ডাস্ট্রি শিখ হয়েছে। সেই জন্য এটা নিয়ে বসে আলোচনা করে ঠিক করা উচিত। কারণ পশ্চিমবাংলার শিল্পের এটাই মেরুদণ্ড হতে পারে। নূতন শিল্প আসছে না কিছু, জুট শিল্পকে যদি আমরা রিভাইভ করি, আধুনিক করি,
যেমন বিভিন্ন হাতের কাজের মাধ্যমে জুটকে পাবলিকের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন লোকেরা, তাদেরকে সাহায্য করি। আমার মনে হয় এটা বাঁচতে পারে এবং পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে অর্থ আসতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার বলেছে যে কেন্দ্র সরকার এই জুট শিল্পর বিষয়ে কোনো সহযোগিতা করছে না। উনি কতবার এবং order ও বসেছেন, দিচ্ছেন না। উনি কতবার বসেছেন কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে। উনি তো ডাকলেও যান না, উনিও কেন্দ্র সরকারের পাঠানো টাকাটা খেতে চান। বসুন, কথা বলুন। এখানে তো বলুন 13,000 কোটি টাকার কিনছে, তো উনি রাজ্য সরকারেও সমস্ত যত সরকারি প্রকল্প সরকারি জায়গায় যে আর ব্যাগ ইত্যাদি লাগে, আজকে A to Z তৈরি হচ্ছে জুট থেকে, সেটা কিনুন। তাহলে শিল্পের কাছে টাকা যাবে, কর্মচারীদের কাছে টাকা যাবে, কৃষকদের কাছে টাকা যাবে। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर में जूट भी आता, सिंथेटिक भी आता, वुलन भी आता, सिल्क भी आता, कॉटन भी आता, सभी मैन मेड फाइबर आता, बेस्कोस आता। आज मैं स्पेशली आया हूँ क्राइजेफ में। क्राइजेफ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जूट के सहित सभी फाइबर पे काम करता। अभी तक हम 27 क्विंटल फाइबर हेक्टर में आ रहा था। अभी डायरेक्टर ने, क्राइजेफ के डायरेक्टर मनोहर गौरांकर साहब ने एक ऐसा वैरायटी निकाला है जो 50 क्विंटल से के लगभग में आया, यानी जस्ट डबल। और इससे किसानों को भी फायदा होगा, जूट मिल को भी फायदा होगा, लेबर को भी फायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है 40 लाख किसान जुटे हैं, 4 लाख बंगाल में लेबर हैं जूट मिल से जुड़े हुए। लेकिन ममता दीदी कुंभकर्ण की तरह सोई हुई हैं, न उनके सरकार का कोई व्यक्ति किसान के लिए जुटता क्राइजेफ से। अब भारत सरकार की इंस्टीट्यूट है, तो या तो खुद आप बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करके नए तरह का बायोटेक्नोलॉजी दो, लेकिन जब किसान के लिए नहीं निकलोगी तो केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए निकलोगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बंगाल गवर्नमेंट की। और यहाँ केवल हमने कहा है लगभग 14,000 करोड़ का जूट बैग पूरे सीजन में खरीदने का। जूट बैग की कीमत भी बढ़ाया। अब इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हम 3 पाउंड का सूता 1.5 पाउंड के सूते पर काम कर रहे हैं। अभी जूट बैग 1,10,000 टन के बिकता है। मेरा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर के ऐसा प्रोडक्ट हो जो मिनिमम 2 लाख रुपए टन हो। आज अभी फर्स्ट हाफ में मैं 2 दिन के लिए आया क्राइजेफ में, और मेरा पूरा उम्मीद है कि जूट का रिवाइवल होगा। और कहा है कि जूट बैग का ऑर्डर उसी को दें, जूट कॉरपोरेशन को कहा है। जो इंडस्ट्री मजदूरों को सरकारी नियम के तहत EPFO नंबर दे, उनके सारे फैसिलिटी दे, उसको जांच करके, और मजदूर का नंबर छिपाए नहीं, वो ऑनलाइन करे, एक प्लेटफार्म पर करे, जिससे मजदूरों का हक मिल सके। ये कहा है। अब क्राइजेफ ने एक बड़ा काम किया है।
जिस पर राज्य सरकार को क्राइजेफ के साथ मिलना चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए। एक क्रॉप साइकिल बनाया है जिसमें किसान को 1 हेक्टर में आराम से 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आएगी। कहा है जूट लगाइए, जूट में मैंने कहा कि डबल आ गया है, उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों किसानों तक ले जाना। जूट के बाद धान लगाइए, पैडी, पैडी के बाद फ्लैक्स लगाइए जो अभी लगा है, या कहिए फ्लैक्स, जूट, पैडी। केवल फ्लैक्स में 14 क्विंटल फाइबर आ रहा है और जिसकी कीमत 3 लाख रुपया हो रहा है। उसका एक इको सिस्टम तैयार होगा, जूट का एक इको सिस्टम तैयार होगा। इको सिस्टम का मतलब है सीड से लेकर के फाइबर मिल तक। उसी के लिए आज साइंटिस्ट, जूट मिल, जयश्री मिल, सारे लोगों को यहाँ बुलाया हूँ और सबके साथ अभी फील्ड विजिट हुआ। अभी इसके बाद वर्कशॉप होगा, डिस्कशन होगा। और सबसे खुशी की बात है कि जूट स्टिक से एथेनॉल मिला है, क्राइजेफ ने निकाला है। डॉक्टर अरविंद, जो भी नाम हो, अरविंद सिंह, और क्राइजेफ के डायरेक्टर ने मुझे एथेनॉल दिया और मैं उससे टेस्ट कराया पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी के साथ मिलकर के। वो टेस्ट रिपोर्ट में अच्छा आया है और उम्मीद करते हैं एक प्रोटो डिजाइन छोटा सा खड़ा भी होगा और इंडस्ट्री भी MOU करने के लिए तैयार है। तो ये एक पहल है और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जब इतना पहल कर रहा है तो राज्य सरकार को भी किसानों के हित में, मिल के हित में, मजदूरों के हित में आना चाहिए।